today I am going to continue this class with a wonderful poem, and the name of the poem is Topsy Turvy Land. Yes, the name of the poem is Topsy Turvy Land, composed by H.E. Wilkinson. Composed by H.E. Wilkinson. Students, this is a weird poem. You know, sometimes we have weird imagination. Some of us have different imagination. Sometimes we feel we are living in a fairy tale. So this is one of such poem. Topsy Turvy Land is a poem written by H.E. Wilkinson. It is a very interesting poem that tells us to the land where everything is different. Everything is upside down. The poem tells us about a strange land where nothing is normal. In fact, the normal that we live in, everything is opposite of that of this land. Okay, so without wasting any time, let's start the poem. First of all, tell me one thing. Have you ever thrown your school bag on your bed? Have you thrown your school bag on your bed? Have you ever left your shoes, socks here and there? Have you ever played with your ball in your room? Does your room sometimes look like this? See the picture? Does your room sometimes look like this land? Look like this picture? If yes, then you are definitely going to connect with this poem, Topsy Turvy Land. So let's start the poem. So first of all, I am going to recite the poem, and you have to practice it in the same manner. Okay? Let's start. The people walk upon their heads. The people walk upon their heads. The sea is made of sand. The children go to school by night in Topsy Turvy Land. The front door step is at the back. You are walking when you stand. You wear your hat upon your feet in Topsy Turvy Land. The buses on the sea you will meet, while pleasure boats are planned to travel up and down the streets in Topsy Turvy Land. You pay for what you never get. You pay for what you never get. I think it must be grand, for when you go you are coming back in Topsy Turvy Land. So this is the poem. Let us start with English explanation of the poem. So first of all, we will see first stanza. The people walk upon their heads. The sea is made of sand. The children go to school by night in Topsy Turvy Land. So in the first stanza here, the poet says that the people in the Topsy Turvy Land walk upon their heads. They walk upon their heads, and generally we walk upon feet, right? But in Topsy Turvy Land, the people walk upon their heads. The sea is made of sand. The children go to school by night in Topsy Turvy Land. The sea over here is made up of sand rather than water, and the children go to school by night. Isn't it fun? The whole day, throughout the day, you can only playing and idling away with your friends, with your parents, and it's the night time that you go to school. The whole day you are spending your time here and there, idling away only, and at the night time you are ready to go to school. Isn't it fun? Now come to the next stanza. The front door step is the back. You are walking when you stand. You wear your hat upon your feet in Topsy Turvy Land. The second stanza tells us that the front door steps is at the back. So generally we have front door at the front of our house, okay? But in Topsy Turvy Land, the front door is at the back side of the house. You are walking upon your feet, and when they are walk, actually they are still stand. And when they walk, actually it is the time that they stand still. And in this land, they wear their hats upon their feet, not upon their heads. And in this land, they wear their hats on their feet, not on their heads. Okay. Next stanza says, the buses on the sea you will meet,
while pleasure boats are planned to travel up and down the streets of topsy-turvy land. It means there are buses that are used to travel on the seas, whereas the boats are used to travel on the roads, just opposite to each other, right? Now come to the next stanza. You pay for what you never get. You pay for what you never get. I think it must be grand, for when you go you are coming back in topsy-turvy land. It means here the poet says that they pay for that they never get. So they are actually paying for the things that they are never going to get at all. Isn't it strange? Who would do that? But that probably happened in the topsy-turvy land, okay? For when you are going, you are coming back. At the time when you are going, you are coming back. It is just the opposite when you feel like and you pretended that you are going towards this land. It is the time that you are actually coming out of this land. So this was about the very upside down place, that is topsy-turvy land. All these things are happen in a topsy-turvy land. It is not a real land, it is an imaginary land, okay, where everything is upside down. Upside down means ulta pulta, okay. Now let's see the Hindi interpretation of the poem. So first of all let me clear one thing. ये जो land है topsy-turvy land, ये कोई रियल लैंड नहीं है, इट इज़ एन इमेजिनरी लैंड. ये काल्पनिक दुनिया है. जनरली क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसे कभी कभी वियर्ड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. फॉर एग्जांपल कैंडीज़ का कोई ट्री होता तो कितना अच्छा होता. आप लोग के मन में भी कभी कभी ऐसा आता होगा कि अगर कोई ट्री हो जिस पे आइसक्रीम्स लगी हो, एंड कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कोई हम ऐसी लैंड में चले जाएं जहाँ पे परियों की दुनिया हो, फेरीज हो, या कोई सुपरमैन टाइप कोई ऐसी पावर हो वो हमें मिल जाए. या कभी कभी लगता है कि कैसा होता कि अगर हमको उड़ना आता आसमान में, तो हम बर्ड्स की तरह उड़ रहे होते. कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि जो नदी है, झरना है, ये अगर कोल्ड ड्रिंक्स का होता तो कैसा होता. सच इमेजिनेशंस गिव लॉट्स ऑफ फन. सपोज दैट आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा ट्री हो जिसमें आपकी फेवरेट आइसक्रीम्स लगी हो, या जो झरना बह रहा है या नदी है पास में, तो वो नदी किस चीज़ की हो, पानी की नहीं हो, उसमें क्या हो, आपकी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक्स हो. तो कैसा लगेगा आपको. या आप किसी परियों की दुनिया में चले जाएं, तो अक्सर बच्चे अपने पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड से ऐसा डिस्कशन करते पाए जाते हैं. तो ये जो पोएम जब राइटर ने लिखा, तो उस टाइम उनके मन में भी आई थिंक ऐसी ही कोई इमेजिनेशन चल रही होगी कि अगर ऐसा कोई लैंड हो जहाँ पे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो तो वो कैसा लगेगा. तो ये पोएम वैसे ही इमेजिनेशन वाले, वैसे ही थॉट्स वाले बच्चों के लिए है जो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस उनके माइंड में आते हैं और वो एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, उसको एंजॉय करने लगते हैं. तो जब हम छोटे होते हैं तो हमें रियलिटी इतनी ज़्यादा पता नहीं होती है, तो हम लोग इमेजिनरी लैंड अक्सर इमेजिन कर लेते हैं. तो यहाँ पे भी एक इमेजिनरी लैंड है जिसका नाम है टॉप्सी-टर्वी लैंड. तो हमने आपको बता दिया कि एग्जैक्टली पोएट के मन में ये थॉट कहाँ से आया होगा. आई एम 100% श्योर कि ये थॉट उन्हीं बच्चों को देख करके पोएट के मन में आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं बच्चों के मन में, तो उसके आंसर्स भी मिलने चाहिए. और नहीं मिलने चाहिए तो एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए कि बच्चे इस तरह के भी थॉट्स लाते हैं, सोचते हैं. बच्चे ही क्यों, कभी कभी हम लोग भी सोच लेते हैं कि काश हम इस लैंड पर नहीं होते ना, हम लोग उड़ रहे होते तो कितना अच्छा होता, या फिर पेड़ों पर रहते. वाओ, इट्स सो स्ट्रेंज. तो वैसे ही यहाँ पे एक लैंड है जो कि डिफरेंट है यहाँ की लैंड से. वहाँ पे जो कुछ होता है हम लोग जैसा करते हैं ना, वैसा नहीं होता, वो उसका अपोजिट होता है. सो लेट्स स्टार्ट. द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स. वेयर? They walk upon their heads in topsy-turvy land. The people walk upon their heads. The sea is made of sand. Imagine करिए कि people walk upon their heads. जो लोग हैं ना, वो चल रहे हैं, वो पैरों से नहीं चल रहे हैं, अपने सर के बल चल रहे हैं.
एंड द सी इज मेड ऑफ सैंड, और इतना ही नहीं, जो सी है, समुद्र है, उसमें पानी के बजाय सैंड हो तो कैसा लगेगा। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाई नाइट, और बच्चे दिन में स्कूल नहीं जाते हैं टॉपसी टर्वी लैंड में, बच्चे कब जाते हैं स्कूल, बच्चे रात में जाते हैं स्कूल। मतलब पूरा दिन वो सिर्फ एंजॉय करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, और जब रात होती है ना तो उस टाइम वो लोग तैयार होते हैं स्कूल जाने के लिए, टिफ़िन बनता है उनका फटाफट। तो अगर इस तरह से हो तो कितना वियर्ड है ना। सबसे पहले हमें पता चला टॉपसी टर्वी लैंड में वहाँ के लोग जो हैं वो कैसे चलते हैं, पैरों के पर नहीं चलते हैं, वो सर के बल चलते हैं अपने। द सी इज मेड ऑफ सैंड, और जो समुद्र है वहाँ पर वो, उसमें पानी नहीं है, उसमें क्या है, सैंड है, रेत भरी हुई है। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाई नाइट, और बच्चे स्कूल रात में जाते हैं, दिन में नहीं जाते हैं इन टॉपसी टर्वी लैंड। और ये सब कहाँ होता है, इमेजिनरी लैंड में, टॉपसी टर्वी लैंड में। द फ्रंट डोर स्टेप इज द बैक, जनरली हमारे घरों में फ्रंट डोर कहाँ होता है, घर के जस्ट सामने होता है जिससे हम लोग एंट्री करते हैं। घर में एंट्री करने के लिए फ्रंट डोर हमारा घर के सामने ही तो होता है, बट टॉपसी टर्वी लैंड में क्या है, द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक। फ्रंट डोर जो है जिसमें हम घर में एंट्री करते हैं जिसके ज़रिए, वो कहाँ पर है, वो घर के सामने नहीं है, घर के पीछे है, पीछे से लोग अंदर आते हैं। यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड, और वहाँ पर जब आप खड़े होते हैं ना तो इस टाइम खड़े नहीं होते हैं, एक्चुअली वो लोग चल रहे होते हैं, और जब वो चल रहे होते हैं तो उस टाइम एक्चुअली वो खड़े होते हैं। इट मीन्स जो हम लोग करते हैं उसका एकदम अपोजिट करते हैं। अभी इस टाइम हम खड़े हैं, बट मैं एक्चुअली खड़ी नहीं हूँ इन टॉपसी टर्वी लैंड, मैं चल रही हूँ, और जब मैं चल रही हूँ उस टाइम पर मैं चल नहीं रही हूँ, मैं खड़ी हुई हूँ। सो क्या है, ये एकदम अपोजिट है। यू वियर योर हैट अपॉन योर फीट इन टॉपसी टर्वी लैंड, इतना कम था कि टॉपसी टर्वी लैंड में और भी कुछ होता है। देखिए, यू वियर योर हैट अपॉन योर फीट, टॉपसी टर्वी लैंड में लोग जो हैट्स होती है ना वो अपने सर पर नहीं पहनते हैं, पैरों में पहनते हैं इन टॉपसी टर्वी लैंड। ये सब कुछ टॉपसी टर्वी लैंड में होता है। एंड बसेस ऑन द सीज यू विल मीट, और बसों से अगर आपको मिलना है ना तो आपको कहाँ जाना है, रोड पर नहीं जाना है, बस स्टॉप पर नहीं जाना है। एंड बसेस ऑन द सी यू विल मीट, बस से कहीं जाना है मीन्स तो आपको कहाँ जाना है, समुद्र में जाना है। बसेस कहाँ चल रही हैं, लैंड छोड़ करके समुद्र में चल रही हैं टॉपसी टर्वी लैंड में। नाउ यू कैन सपोज इट हाउ फनी इट इज कि बसेस जो है वो समुद्र में चल रही हैं। सी द पिक्चर, बसेस ऑन द सी यू विल मीट, बसेस से आपको मिलना है तो कहाँ मिलना है आपको, सी में, समुद्र में आपको बसें मिलेंगी। वाइल प्लेजर बोट्स आर प्लांट, जहाँ पर प्लेजर बोट होती है, प्लेजर बोट मीन्स जो बोट होती हैं जो हमें इधर से एक जगह से दूसरी जगह ले करके जाती हैं, तो उनसे अगर मिलना है तो आपको कहाँ जाना है। अब सी में तो बसेस चल रही हैं, तो बोट्स कहाँ चलेंगी, शिप्स कहाँ चलेंगी, जो बोट्स हैं हमारी प्लेजर बोट्स हैं वो कहाँ पर हैं, उनसे अगर आपको जाना है या उनसे मिलना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएं, स्ट्रीट्स पर जाएं, रोड पर जाएं। रोड पर क्या चल रही हैं, बोट्स चल रही हैं, और बसेस कहाँ चल रही हैं, सी में चल रही है। लेट्स सी द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट, आप उस चीज़ के लिए पे कर रहे हो जो चीज़ आपने खरीदी ही नहीं। आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड, मुझे लगता है कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है कि हम उन चीज़ों के पैसे दे रहे हैं जो चीज़ हमें खरीदनी ही नहीं है, और जो चीज़ हमें खरीदनी है वो मुझे फ्री में मिल रही है। कहाँ पर, इन टॉपसी टर्वी लैंड, नॉट ऑन दिस लैंड, ओके। तो टॉपसी टर्वी लैंड में हम उस चीज़ के लिए पे करें जो चीज़ हमने खरीदी ही नहीं। अगर ऐसा हो तो कैसा लगे, और जबकि जो चीज़ हम खरीद रहे हैं वो सारी चीज़ें हमें फ्री में मिल जाए। Isn't it weird? For when you go, you are coming back. तो जब आप चल रहे होते हैं, कहीं जा रहे हैं, तो एक्चुअली आप जा नहीं रहे हैं, आप वापस आ रहे हैं। Where? In topsy turvy land. Because in this land everything is उल्टा पुल्टा। वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ अपसाइड डाउन है। अपसाइड डाउन में सब कुछ उल्टी पुल्टी हैं, which is opposite to this land. So I hope you enjoyed the poem कि एक इमेजिनरी लैंड है और इस लैंड में सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। वहाँ पर लोग चलते कैसे हैं, सर के बल चलते हैं। हम लोग कैसे चलते हैं, पैर के बल चलते हैं। तो सपोज दैट अगर लोग सर के बल चलने लगे तो कैसा लगे। एंड बच्चे जो हैं वो दिन में स्कूल जाने की बजाय अगर रात में स्कूल जाने लगे तो कैसा लगे।
अगर आपका फ्रंट डोर आपके घर के पीछे लगा हो तो कैसा हो? जब आप चल रहे हो तो वास्तव में आप चल नहीं रहे हैं, तब आप रुके हुए हैं। यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट, आप अपनी हैट को पैरों में पहनते हो। अगर ऐसा हो तो कैसा लगेगा? द बसेस ऑन द सीज यू विल मीट, और बसें जो हैं वो कहाँ चल रही हैं? समुद्र में चलने लगे। और समुद्र की जो बोट्स हैं वो कहाँ चल रही हैं? लैंड पर चलने लगे, हमारे रोड पर चलने लगे। अगर इस तरह से हो, उल्टा हो जाए तो कैसा लगे? आप उस चीज़ के लिए पे करें जो चीज़ आपको खरीदनी ही नहीं है, और जो चीज़ आपको खरीदनी है वो चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। जब आप कहीं जा रहे हैं या कहीं, तो वास्तव में आप जा नहीं रहे हैं, आप वापस आ रहे हैं। तो अगर इस तरह से सारी चीज़ें अपोजिट हो जाए, सारी चीज़ें उल्टी हो जाए, अगर सब कुछ अपोजिट हो जाए तो वो कैसी पिक्चर होगी? वो इसी तरह की कुछ पिक्चर होगी, राइट? तो ये सारी जो इमेजिनेशन है ये सब कहाँ पे फुलफिल होती हैं? ये सब हमारी लैंड पे फुलफिल नहीं होती हैं। ये हमारे लैंड से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? वी आर वॉकिंग ऑन आवर फीट, हम लोग पैरों के बल चलते हैं। बट इन टॉपसी टर्वी लैंड वहाँ पे क्या होता है? लोग सर के बल चलते हैं। यहाँ पर हम लोग हैट जो है वो सर के ऊपर लगाते हैं, बट टॉपसी टर्वी लैंड में वो लोग पैरों में पहनते हैं हैट को। बसेस हमारे यहाँ लैंड्स पर चलती हैं, बट टॉपसी टर्वी लैंड में बसेस कहाँ चलती हैं? सी में चलती हैं। और सी में चलने वाली बोट्स वो कहाँ चलती हैं? प्लेजर बोट चलती हैं स्ट्रीट्स पर, रोड्स पर। यहाँ पर हम जब चलते हैं उस टाइम हम लोग वास्तव में चल ही रहे होते हैं, बट टॉपसी टर्वी लैंड में क्या है? वहाँ पर एकदम इसका अपोजिट है। वहाँ जब हम चल रहे होते हैं तो वास्तव में हम चल नहीं रहे होते हैं, हम रुके हुए होते हैं, खड़े हुए होते हैं। और जब हम खड़े होते हैं उस टाइम हम लोग चल रहे होते हैं। यहाँ पर बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्टूडेंट्स कब जाते हैं? दिन में जाते हैं ऑब्वियसली। बट इन टॉपसी टर्वी लैंड वहाँ पे जब बच्चों को स्कूल जाना होता है तो कब जाते हैं? वो रात में जाते हैं। उनकी मम्मी रात में उठ करके उनके लिए लंच पैक करती हैं और टिफ़िन पैक करती हैं, उनका बैग लगाती हैं। तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं? एट द नाइट टाइम, नॉट ड्यूरिंग द डे टाइम, ओके। और दिन में वो क्या करते हैं? बस इधर उधर घूमते रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय करते हैं लाइफ को। यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट, वहाँ पर तो हम उन चीज़ों के लिए पे करते हैं, मनी पे करते हैं जो चीज़ें हमें खरीदनी नहीं होती हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? जो चीज़ें हमें खरीदनी होती हैं हम उन चीज़ों के लिए पे करते हैं, है ना। बट टॉपसी टर्वी लैंड में जो चीज़ें हमें नहीं खरीदनी होती हम उनके लिए पे करते हैं। तो ये डिफरेंस है टॉपसी टर्वी लैंड का हमारे अपने लैंड से। तो पोएम स्टार्ट होने से पहले ही हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि जैसे अगर आप सपोज़ करिए आप स्कूल से जाने के बाद आप अपना स्कूल बैग उठा करके क्या बेड पर फेंक देते हो? आप ऐसा करते हो या नहीं करते हो? अगर करते हो तो इट मीन्स आपने अपने घर को भी टॉपसी टर्वी लैंड बना रखा है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन था कि हैव यू एवर लेफ्ट योर शूज़ एंड सॉक्स हियर एंड देयर, क्या आप अपने शूज़ अपने सॉक्स को स्कूल से जाने के बाद इधर उधर फेंक देते हो? एक इधर रहता है और दूसरा बेड के नीचे रहता है। और जब मॉर्निंग में स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा होता है तब जल्दी हम लोग सर्च करते हैं कि कहाँ पर था। कभी कॉपी नहीं मिलती है, कभी होमवर्क कॉपी नहीं मिलती है, कभी कोई बुक नहीं मिलती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। कभी कभी आई थिंक आप लोग बॉल के साथ अपने रूम में ही खेलने लगते हो, पता चला किसी चीज़ पर लग गई और वो चीज़ टूट गई। फिर क्या होता है? फिर मम्मी की डांट पड़ती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है। तो अब वो चीज़ मैं नहीं कह सकती, अब आप लोग खुद ही उसको एक्सपीरियंस कर रहे होगे। अगर आप लोगों ने ऐसा किया होगा, अपने घर को टॉपसी टर्वी लैंड अगर बना रखा है, तो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी परेशान मत कीजिए। अगर आपने अपने रूम को इस पिक्चर की तरह टॉपसी टर्वी लैंड में जैसे सारी चीज़ें हफाजर्ड होती हैं, सारी चीज़ें अपसाइड डाउन है, वैसे ही अगर आपने अपने रूम को भी अपसाइड डाउन कर रखा है, आप इसे फ़ौरन ठीक कर लीजिए। इससे क्या होगा? तो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आपकी सारी चीज़ें प्रॉपरली आपको हर जगह पर उसके प्रॉपर प्लेस पर ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। बट कब? जब आप उन्हें उनके प्रॉपर प्लेस पर रखोगे तब, ओके। तो इट्स ऑल अबाउट द पोएम। सो स्टूडेंट्स, इस पोएम से हमें यही लेसन मिलता है कि हमें अपनी चीज़ों को प्रॉपरली उसके प्लेस पर ही रखना चाहिए, जिससे जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें प्रॉपरली बिना किसी एफर्ट के वो चीज़ें ईजिली मिल जाएं। मॉर्निंग के टाइम सबसे ज़्यादा जल्दी होती है, किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी को स्कूल जाना होता है, बहुत जल्दी होती है। उस टाइम पर अगर चीज़ें हमने अपने
जगह पर रखी हुई हैं तो हमें ईजिली मिल जाती हैं, हमारा टाइम बचता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ओके। और कोशिश करिएगा कि अपने बैग को बेड पर मत फेंकिएगा, शूज़ को इधर उधर मत करिएगा, कॉपी बुक्स सारी चीज़ों को, स्पेशली आपका जो कबर्ड है, पता चला खोला एंड द कबर्ड इज़ लुक लाइक अ बैटल फील्ड, जैसे लग रहा है कि उसके अंदर के सारे कपड़े एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं कि नहीं ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह है। आपने खोला, बस सारे के सारे कपड़े आपके ऊपर। तो ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है। तो प्लीज़ अगर आपका कबर्ड भी एक बैटल फील्ड में कन्वर्ट हो गया है तो प्लीज़ उसे प्रॉपरली अरेंज कर लीजिए, फोल्ड कर लीजिए सारे क्लॉथ्स को एंड उसे एक बैटल फील्ड बनने से बचा लीजिए, ओके। सो आई होप you enjoyed this wonderful poem. It's all about today. If you have any query, any doubt regarding the poem, you can ask me. Till then, keep studying, stay at home.